ओके, तो किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे। ओके, शिवम सिंह राजपूत, आपका कैमरा भी अभी भी ऑफ है। मैं कितनी बार रिपीट किया और कितनी बार नाम लिया आपका मैंने। शिवम सिंह राजपूत अपना कैमरा ऑन करेंगे। हाँ, दिव्यांश 1836, प्रत्योष एंड अभिनय एंड आशीष, आप दोनों भी अपने कैमरा ऑन रखेंगे। आशीष 3139, आशीष कैमरा नहीं ऑन रखना है तो क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही रहना है, कैमरा ऑफ रख के क्लास अटेंड करनी है। ऊपर से रिप्लाई भी नहीं करे। हाँ, दिव्यांश 1836, आपका कैमरा भी ऑफ है। दिव्यांश अपना कैमरा ऑन करो। एंड ऑल्सो अरियान 2755, okay, so next question is, highlight any 5 problems identified in providing quality healthcare system in India. ओके, हाईलाइट एनी 5 प्रॉब्लम्स, हमें ऐसी 5 प्रॉब्लम्स हमें हाईलाइट करनी है जो कि हमें क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया में हमें दिखाई देती है हमें। ओके, वो हाईलाइट करनी है हमें। हाँ, तो कौन आंसर करेगा इसका? तानिया 1943, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। प्रीति, व्हाट डिड यू से? Sir, we have to highlight of public health care system of India. Highlight. No. We highlight problems of public healthcare system. Okay. हाँ, ओके, तानिया 1943, आपको आंसर आता है? डू यू नो आंसर? नेम सर 4 ही आते हैं। अभी केयरफुली लिसन करना है अभी। ओके, हाँ, प्रीति 2440। Yes, sir. Sir, number first is national level, number second is state level, number third is district level, and fourth is community level, number fifth is primary level. So number first, national level is. प्रीति, आप मुझे स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बता रहे हैं। ओके, जो आप बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। माय क्वेश्चन इज हाईलाइट एनी 5 प्रॉब्लम्स of public healthcare system in India. Sir, can I? Problem? हाँ, okay, Akshita. Problem identify in providing quality healthcare in India. First, high population, expensive treatment, government schemes and benefit do not reach the need. Also, the are the war of success. Okay, Akshita, okay, good. Okay, प्रीति को आंसर मालूम पड़ गया है? Okay, and Tanya? Sir, actually दे रहा था। Okay, okay. Okay, so same question and answer करेंगे आर्यन 2755। आर्यन का कैमरा फिर ऑफ हो गया। आर्यन 2755, आर्यन 2755, शर्नव 1430, शर्नव 1430, I'm audible to you students? Yes sir. Yes sir. Okay, तो बाकी स्टूडेंट्स रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, प्रत्युष 1242। Yes sir. Pratyush, highlight any 5 problems of public healthcare system. Yes sir. Problem identify is providing quality healthcare in India. Number A, high population identify treatments. Number B, government scheme and Pratyush, expensive treatments.
expensive treatment. Number two, number two, government. पहले बोलो आप expensive. Expensive. Okay, expensive treatments. Expensive treatment. The government schemes and benefits do not reach the needy. Number C, the condition of backward classes is also not good. Number D, the poor are the worst offenders due to financial circuit. Okay, good. Next answer by Divyansh 1836. Divyansh. Divyansh, just answer the question. Yes, sir. Answer. Shall I repeat the question? No, Divyansh. Divyansh, question repeat karo. Yes, sir. Question is highlight any 5 problems identified in public healthcare system. 5 problems identified in public healthcare system are: number 1, it is very expensive. Number 2, the government schemes and benefits do not reach the needy. Okay. So third one. Yes, sir. So number 3, the condition of backward classes is also not good. The poor are the bad sufferers. Poor are the worst. And the poor are the worst sufferers. Yes, sir. Worst sufferers in the financial financial crisis. Due to financial crisis. ओके देखो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि आपको जो मैंने आंसर दिया था आपको कि हाईलाइट एनी 5 प्रॉब्लम्स. ओके लेकिन आपको ने जो है यहाँ पे ए बी सी डी. ओके तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है ए ऑप्शन में आपके 2 प्रॉब्लम्स हैं. ओके वन इज हाई पॉपुलेशन एंड सेकंड इज एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स. ओके तो 2 वहां पे कवर हो रही हैं. फर्स्ट में ही 2 पार्ट्स हैं, हाई पॉपुलेशन एंड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स. ओके तो 2 यहाँ पे होगी, बाकी 3 है सी बी सी डी. ओके वैसे कंफ्यूज नहीं होना है. क्वेश्चन में 5 और हमने तो 4 ही लिखी है. तो फर्स्ट वाले पार्ट में 2 इंक्लूडेड है. ओके नेक्स्ट आंसर बाय शिवम सिंह राजपूत 1399. और अगर शिवम सिंह राजपूत ने आंसर नहीं किया तो क्लास से डायरेक्ट रिमूव होगा. शिवम सिंह राजपूत 1399. शिवम आपका कैमरा भी ऑफ है, अपना कैमरा ऑन करो. जस्ट आंसर द क्वेश्चन. शिवम सिंह राजपूत. शिवम सिंह राजपूत. Okay, next is Aryan 2755. Okay, प्रीति ने हैंड रेज किया. हाँ यस प्रीति. यस सर. सर मेरे को मेरी एक बर्थडे डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास और उसकी वजह से मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हुई थी. मेरे को सर एक प्रॉब्लम है इस चैप्टर में. हाँ अच्छा आपकी क्लास ज्वाइन हुई थी लेकिन आपको प्रॉब्लम है इस चैप्टर में. हाँ क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट आपको समझ नहीं आया, आप ये कह रहे हैं आप? यस. हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट. ओके तो सबसे पहले कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या प्रोविजन दिए गए. ओके रिगार्डिंग टू अवर हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दिए गए.
ओके, तो सबसे पहला तो यही है कि जो आर्टिकल 21 में हमें दिया गया है, ओके, राइट टू लाइफ, हमें एक राइट दिया गया है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ इन आर्टिकल 21। ओके, एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन किया गया है बोथ गवर्नमेंट के लिए, सेंटर एंड स्टेट, कि आपने पब्लिक हेल्थ केयर के लिए आपने वर्क करना है, आपने अपने जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक पब्लिक हॉस्पिटल्स, आपने इनको एस्टेब्लिश करना है, आपने इनको, ओके, और पब्लिक को काफी गुड हाइजेनिक कंडीशंस, सेफ एनवायरनमेंट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो गुड सीवरेज सिस्टम आपने प्रोवाइड करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ओके, एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू लाइफ हमें दिया गया है, ये हमें प्रोवाइड करता है, ओके, इट एंश्योर द सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन, ओके, एवरी सिटीजन और एवरी इंडिविजुअल, चाहे फिर वो किसी भी रेस को बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर या किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि राइट टू लाइफ सभी को प्रोवाइड किया गया है, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनी कास्ट एंड एनी रिलीजन, ओके, एंड एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप टेकन किए गए, तो मैंने पहले बताया था, एक पॉलिसी बनाई थी इंडिया ने, ओके, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ओके, नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ने, ओके, इसे अडॉप्ट किया गया था बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1983 में इसे अडॉप्ट किया गया था, एंड आल्सो अमेंडमेंट भी की गई इसमें इन 2002, ओके, और इसका जो मेन एम था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मेन एम था, इट एम्स एट ब्रिंगिंग द पब्लिक हॉस्पिटल्स एट पार विद द प्राइवेट हेल्थ केयर अंडरटेकिंग, मीन्स कि प्राइवेट हेल्थ केयर को हमने कब रिकॉग्नाइज करना है उनको, ओके, और पब्लिक को हमने ज्यादा उन्हें इंक्रीज करना है हमने, ओके, एंड ऑल्सो प्रोवाइड टू पीपल्स with skilled staff, qualified doctors, good infrastructure and sophisticated equipments, okay, and also एक योजना भी चलाई थी, एक पॉलिसी चलाई थी गवर्नमेंट ने, द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ओके, अब तो काफी सारी पॉलिसीज आ गई हैं, लेकिन काफी फेमस थी जब स्टार्टिंग में हुई, द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ओके, एंड ऑल्सो बाकी सारे गवर्नमेंट ने और कौन कौन से स्टेप टेकन किए हैं, जैसे कि वो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे अगर पल्स पोलियो वैक्सीन है तो ये भी प्रोवाइड करते हैं वो, कि अपने पीपल्स को जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, जैसे आजकल कोविड की वैक्सीन जो है सबको फ्री प्रोवाइड हो रही है, ओके, तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं ये, जो कि रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ केयर से कनेक्टेड है सभी ये, ओके, क्लियर विनीति? Yes. Okay, so the next question is, okay, so next question is, write any 4 parameters of being healthy, okay, write any 4 parameters of being healthy. Sir, can Sharna, Sir, can brief the proper balance diet, safe drinking water, hygienic conditions, and good living environment and rural housing. Okay, and proper balanced diet and active and healthy lifestyle. Okay, these are the parameters of being healthy. Okay, next is next answer by Abhimanyu. Abhimanyu, I think Abhimanyu abhi class went to. Okay. Sir, can So you tell the answer of this question? Yes, Priti. आप बताओ आंसर प्रीति. Yes, sir. Sir, proper balanced diet, sir, hygienic condition and good living environment. Sir, आप क्या बोल रहे हो? Sir, and sir, active and healthy lifestyle. ज्वाइन हुआ सर. Okay, Priti. आपने बताया proper balanced diet, safe drinking water, and hygienic conditions, and also good living environment. Okay. Sir, active and healthy lifestyles.
okay. Sir, And rural also active and housing. healthy life. Yes. Okay, जो हमारा लाइफस्टाइल है एक तो एक्टिव भी होना चाहिए, ओके, एंड आल्सो हेल्दी भी होना चाहिए. Excuse Okay, me, active sir. lifestyle. हाँ, yes. सर, रोलिंग हाउस क्या पैरामीटर्स ऑफ बीइंग हेल्दी में आता है? हाँ, कौन सा बेटा, कौन सा पैरामीटर? सर, रोलिंग हाउसिंग. रूलिंग हाउसेस, यस. रूलिंग हाउसेस और रूरल हाउसेस. सर, रूरल हाउसिंग. हाँ, रूरल हाउसेस, रूलिंग तो कुछ और हो जाएगा बोलोगे. रूरल हाउसेस मींस कि जो हमारे जो गांव के जो घर है, हमारे गांव के हाउसेस हैं. ओके. यस. So your mic is muted. ओके, आई एम ऑडिबल टू यू स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ, ओके, तो आपने जो क्वेश्चन किया था कि क्या रूलिंग हाउसेस हैं वो बीइंग हेल्दी पैरामीटर्स में आ सकते हैं. देखो, वैसे हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं उसे. ओके, लेकिन अगर रूरल एरियाज में अगर काफी अच्छा घर बना है अगर किसी ने, ओके, तो उसे हम कह सकते हैं, उसे काउंट कर सकते हैं. लेकिन अगर विलेजेस में अगर किसी का घर अच्छा नहीं है, मीन्स कि जैसे गांव में आपको पता है कि आप एनिमल्स को रेयर करते हैं. ओके, मतलब जानवर को पालते हैं, जैसे लाइक काऊ होगी, शीप या गोट. तो मैक्सिमम क्या करते हैं, सभी साथ साथ में रहते हैं वो. तो मैक्सिमम जो बीमारियां हमको वहां से लगती हैं हमको. ओके, तो हम उसे ऐसे काउंट नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन अगर किसी ने अच्छा घर बनाया है, जैसे आज की डेट में हो गया है, तो हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं बीइंग हेल्थी में. कि अगर उसका अच्छा घर है, अच्छा उसका एनवायरनमेंट सेफ एनवायरनमेंट है, अच्छा घर है, उसका क्लीन हाउस है, तो हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं उसे. सर, ओके, लेकिन आजकल तो सर हाँ, आजकल ये विलेजेस में तो सभी अच्छे घर बनवा रहे हैं. हाँ, वो इसलिए है वृद्धि क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है, आपने अपने नियर बाय आपने देखा है. लेकिन अगर आप जो काफी रूरल एरियाज हैं, अगर आप वहां पे जाएंगे तो वहाँ की कंडीशन अभी भी. मंजिल घर. हाँ, क्या कह रहे हो? सर मैंने देखे हैं सर, बड़े बड़े 3 मंजिल वाले घर, 2 मंजिल वाले घर. हाँ, ठीक है, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आपने जो देखी है अपने नियर बाय सिचुएशन देखी है आपने, क्योंकि कि आपके घर कैसा है, पड़ोसी का घर कैसा है. लेकिन जो इंडिया के जो काफी रूरल एरियाज हैं, काफी रूरल विलेज हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे इतने अच्छे घर नहीं है. वहाँ पे लोगों ने अभी भी घर वहाँ पे मिट्टी के घर बनाए हैं. और इवन अगर आप राजस्थान एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो घर बनाए हैं उन्होंने वो मिट्टी के घर बनाए हैं. और वो क्या कहते हैं, ग्रास होती है वहाँ पे, जिसे हम कहते हैं कि घास फूस कहते हैं ऐसे हिंदी में, उसके घर बनाए हैं उन्होंने. ओके, जिसे हम हट कह सकते हैं. हट मीन्स झोपड़ी, झोपड़ी बनाएंगे. ओके, तो उनकी कंडीशन वैसी नहीं होती है उनकी. ओके, अगर इवन हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगर काफी जो रूरल एरियाज हैं, लाइक आप चंबा आप जाएंगे. ओके, मेन सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चंबा के जो काफी बैकवर्ड विलेजेस हैं, तो वहाँ पे भी हाउसेस ठीक नहीं है. एक घर एक माउंटेन पे है, एक घर दूसरी माउंटेन पे भी. ओके, तो वहाँ पे जो कंडीशन है इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है. इवन के लोग जो है, अगर कोई लोग बीमार होता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, इवन कोई अगर ओल्ड पर्सन है, जब वो बीमार होता है तो उसे इवन वहाँ पे सड़क से कनेक्टेड नहीं है बाय रोड से. तो क्या करते हैं लोग, उसे कंधे पे उठाकर ले जाते हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए. ओके, काफी 10, 13, 15, 20 किलोमीटर तक ले जाते हैं उन्हें डॉक्टर के पास बताने. ओके, तो आपने जो देखा है, आपने बिल्कुल नियर बाय अपनी सिचुएशन देखी है.
ओके लेकिन Yes. काफी एरियाज है इंडिया में जो काफी रूरल एरियाज है। Yes. हाँ ओके। Yes. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये किसने एंटर किया क्लास में? 3315 3315। सर ये योगेश है। हाँ कौन है? सर बेटा योगेश। नाम क्यों नहीं हाँ नाम क्यों नहीं लिखा है इस पे? अपना नाम भी लिखो साथ में। ओके और सबसे पहले आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है। ओके लास्ट में मैंने कहा था कि आपको लास्ट में बताऊंगा आप सभी को ही। ओके तो आपके रिगार्डिंग, आपके होमवर्क से रिगार्डिंग है। तो आप सभी ने क्या करना है, जैसे आप वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं आप सभी। ओके तो आपको आपके ऐप में आपको लास्ट में कॉलम दिखाई देता है आपको असेसमेंट का, जहाँ पे आप टेस्ट देते हैं आप। ओके तो उसके साथ में ये कॉलम है, वहाँ पे लिखा है असाइनमेंट। तो आपका जो होमवर्क है वो आपको असाइनमेंट में मिलेगा आपको। ओके तो नोटिस बोर्ड में भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नोटिस बोर्ड पे नहीं मिलेगा, नोटिस बोर्ड में भी मिलेगा आपको, वहाँ पे आंसर्स भी मिलेंगे आपको। लेकिन आपने जो अपना होमवर्क जब आपने कंप्लीट कर लेना है तो आपने वहाँ पे अपने होमवर्क की सर आपने आपने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन बुक का काम भेजना सर। सर हाँ जो आपको होम डेली आपको होमवर्क मिलेगा आपको, जो डेली होमवर्क होगा आपका, तो आपने अपनी नोटबुक में उसे कंप्लीट करके और अपनी बुक में कंप्लीट करके उसकी फोटो खींच के आपने वहाँ पे अपलोड करनी है असाइनमेंट में। और असाइनमेंट का जो आपका टाइम है, जो अकॉर्डिंग टू माय सब्जेक्ट, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपने जैसे अगर आज आपको होमवर्क दिया गया है तो आपने कल मॉर्निंग में 9 AM से पहले आपने सेंड करना है आपने। ओके सिंपल सा है, ज्यादा वर्क नहीं है। जब भी आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, आज होमवर्क दिया है तो आज ही कंप्लीट करना है और उसे कल सुबह 9 बजे से पहले वहां पे अपलोड कर देना है उसे। ओके फिर वहां पे सबमिट कर देना है ताकि हम आपका होमवर्क चेक कर सकें। ओके और ये आपको डेली करना है आपको। अगर आपको कोई भी होमवर्क मिलता है, अगर रिवीजन के रिगार्डिंग मिलता है या आपको कोई रफ नोटबुक में मिलता है, मैथ प्रैक्टिस का मिलता है, कोई भी होमवर्क मिलता है तो आपने वहां पे अपलोड करना है वो। ओके Yes, sir. Yes. हाँ ज्यादा डिफिकल्ट, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी वर्क है। होमवर्क कंप्लीट करके बस उसे फोटो खींच कर अपलोड कर देना है असाइनमेंट। Yes, sir. ओके और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक ही इमेज अपलोड होगी, आप काफी सारी मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हैं वहाँ सर पे। वहाँ पे काफी अपलोड होते हैं फोटो। हाँ क्या होता है शर्मा? सर वहाँ पे हम बहुत सारी कर सकते हैं अप टू 20। हाँ जैसे आप मतलब कि कह सकते हैं जैसे आप टेस्ट में करते हैं अपलोड, ओके तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको होमवर्क में ये है कि आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन में लिखा होगा आपने कि आपने ये वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं आपने, फिर आपने उसी में इमेज अटैच कर देनी है इसमें। ओके क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. कोई डाउट? Yes. हाँ ओके और आज आपका टेस्ट है तो आज आपको होमवर्क नहीं मिला है, आज आपका टेस्ट है तो आप सभी ने टेस्ट अटेम्प्ट करना है, सभी ने अच्छे से सबमिट करना है। Yes, sir. ओके तो आपकी अटेंडेंस भी ले लेते हैं, आई थिंक लास्ट 2 मिनट्स लेफ्ट। टेस्ट सभी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करना है। ओके ये लास्ट टेस्ट है इस चैप्टर का, इसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट नहीं होगा, आपको डायरेक्ट आपको आपके सेकंड यूनिट टेस्ट और सेकंड टर्म में आएगा आपको। ओके क्योंकि इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी 2 बार टेस्ट ले चुका हूँ मैं इसके, तो नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट मिलेगा आपको। हाँ चैप्टर नंबर 20। ओके आपकी अटेंडेंस। Excuse me, हाँ यस sir. पिछले टेस्ट के मार्क्स. बेटा मैंने पब्लिश किए हैं, आपको विजिबल नहीं हुए हैं? No, sir. सर किसी भी स्टूडेंट को विजिबल नहीं हुए हैं मार्क्स? No, sir. सर नहीं हुए सर। नहीं आए. करने होते नहीं है सर का, कई बार हुआ सर ये। हाँ, एक बार हुआ है। अच्छा ओके मैं चेक करूंगा, वैसे पब्लिश हो चुके हैं यहाँ से। ओके नहीं आप हर एक बाकी सब सब्जेक्ट में हुआ है. सर हर एक सब्जेक्ट. हाँ मुझे मालूम है कि बाकी सर आते नहीं है सर मार्क्स। हाँ ओके मुझे मालूम है कि बाकी सब्जेक्ट के सर मेरे को मेरे मार्क्स दिख रहे हैं. हाँ ओके वो किसी किसी को दिख रहे हैं, सभी को नहीं दिखते हैं। ओके तो वो थोड़ी सी इशू है, वो हमने वैसे सॉल्व कर दिया हमने इशू। ओके तो अब आपको विजिबल हो जाएंगे। ओके और आपका जो रिजल्ट है मैं पहले उसे 2 बार मैं अनपब्लिश करके पब्लिश कर चुका हूँ। ओके फिर से एक बार कर दूंगा उसे मैं।
ओके, अगर फिर भी नहीं मेरे को विजिबल हो रहे हैं। सर मेरे को वो विजिबल ही हो जाए। सर नोट्स में आपका कॉलम सर मिल गया है मेरे को। हाँ ओके ओके, आपकी अटेंडेंस ले लें। प्रीति 2440, प्रेजेंट सर। अक्षिता राणा 1455, दिव्यांश 1836, प्रेजेंट सर। हर्षित कटोच 1371, प्रत्युष Present, 1244, शर्ना 1430, and Tania 1943, प्रेजेंट सर। Abhimanyu 3315, Yes, and also sir. Abhimanyu. Abhimanyu, registration number? सर 1252। हाँ, तो आपने अभिमन्यु अपना रजिस्ट्रेशन नंबर राइट करना है अपने नाम के साथ। मैंने पहले भी कहा है कि सभी स्टूडेंट्स ने अपने नाम के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर राइट करना है। सर सर आज क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी ना सर मेरी, तो सर हो गया। हाँ ओके ओके ओके, तो नेक्स्ट टाइम आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर राइट करना है आपने सभी ने। ओके, टेस्ट भी आपने करना है। बाकी स्टूडेंट्स आई थिंक क्लास लेफ्ट कर गए हैं, तो आई डोंट नो कि क्यों लेफ्ट करते हैं क्लास। सर प्रत्युष प्रेजेंट। हाँ प्रत्युष प्रेजेंट है 1242। ओके, बाकी स्टूडेंट्स सभी लेफ्ट करके क्लास, लाइक 1309 चला गया ये काफी